Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswati International School, Vapi. We are going to start with our new topic, that is a human reproduction, and in this chapter we had going to discuss the spermatogenesis process in the males. Okay. In our previous lecture videos we had described a lot of things with respect to the, you can say, this chapter, like introduction is over, male reproductive system in detail description is over. Okay. And then with respect to the females we had described the female reproductive system as well as the hormonal control. Okay. With respect to the males and the female, that is also completed. In our today's lecture we are going to start with the spermatogenesis and oogenesis topic in detail. Okay, so let's start the chapter. The process of formation of the sperms is called as a spermatogenesis process. सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता भी होगा. ठीक है. It occurs in the seminiferous tubules of the testes. Okay. The seminiferous tubules are lined by the germinal epithelial cells जो कि हैं. Okay, क्या होंगे ये? डिप्लॉयड होंगे. ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे. 2n. Okay. Now the germinal epithelial cells will be consist of, you can say, cuboidal layers. Okay, cuboidal cells होते हैं या फिर उनको बोलेंगे primordial germ cells. क्या बोलेंगे? Primordial germ cells. germinal epithelial के cells या तो वो cuboidal दिखते हैं या फिर उनको primordial germ cells भी कहा जाता है. Okay, and curtain certain tall somatic cells जिनको सर्टोली सेल्स कहा जाता है, जिनको नर्व सेल्स के नाम से भी पहचानते हैं, क्योंकि मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में कि ये जो सर्टोली सेल्स है वो क्या करेंगे, तो वो नरिशमेंट करेंगे टू द डेवलपिंग स्पर्म्स. ओके. Spermatogenesis includes the formation of spermatids and the formation of the spermatozoa. So what is spermatogenesis in short? It includes the formation of spermatids and the formation of spermatozoa. Okay, ये कंपलसरी ध्यान में रखना है. नोट, क्या बोल रहा है ये नोट? जैसे कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, जैसे कि सीजनल ब्रीडर्स like llamas and the bats, testes are descend into the scrotum in the breeding season, otherwise they will be remain into the abdominal region. Okay. And after the breeding region will get completed, the testes will again ascend into the abdominal cavity. Next, the lions and the horses and the humans, you can see over here, testes are always extra abdominal, means they will remain hanging outside. Now see, in element and the whales, elephants and the whales are intra-abdominal. Testes are intra-abdominal. Means what? It will always remain inside the, you can say, the abdominal cavity. Let's talk about the process of spermatogenesis in detail now. See, the first phase, you can see the formation of the spermatids. It will be undergoing a 3 phases like multiplication phase, growth phase, maturation phase. यहीं पे आपके क्वेश्चंस बनना चालू हो जाते हैं, तो ध्यान देना इस बातों के ऊपर. ओके. और जो सेकंड फेज होगा उसको कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. ओके. तो पहला स्टेज जो है वो कि 3 फेजेस में खत्म होगा, जहाँ पे स्पर्मेटिड्स बनेंगे. ओके. तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज, एंड देन फाइनली इट विल बी कंप्लीटेड इनटू द सेकंड फेज जिसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. ओके. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स. नोट, टोटल कितना टाइम लगेगा? तो 74 days process will be completed within, you can say, in total 74 days the process will be getting completed. The testes descend into the scrotum in the 7th month of the embryonic development under the influence of the FSH. Okay. Spermiation. So let's talk about this permeation topic. Release of the mature sperm from the Sertoli cells. Okay. तो ये रहा स्क्रीन पे एक अप्रोक्सीमेटली एक सिनेरियो आप लोगों के स्क्रीन पे है. ओके. मैंने बना के रखे यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो कि डिप्लॉइड्स होते हैं, एक को बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन वन सिंगल सेल. बाकी सब में भी सेम एक्टिविटी होगी. एक ही सेल के बारे में पहला बात करते हैं. सो दिस जर्मिनल एपिथेलियल सेल विल अंडरगो अ मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब माइटोसिस होगा. और तुमको पता है कि एक माइटोसिस बना के देगा 2 सेल्स, फिर से माइटोसिस होगा, फिर से यू विल बी गेटिंग 4 सेल्स. अब ये 4 सेल्स बनने के बाद डिफरेंशिएट हो जाते हैं. ओके. पहले 2 सेल्स जो है इनको बोलेंगे टाइप ए सेल्स, और बाकी के 2 सेल्स जो है इनको बोलेंगे टाइप बी सेल्स. एनी डाउट ओवर हियर? नो ना, इट्स वेरी सिंपल. सी, टाइप ए सेल एंड द टाइप बी सेल.
टाइप ए सेल जो है इट विल एक्ट एज अ स्पर्मेटोगोनिया, ओके। टाइप बी सेल भी दे आर स्पर्मेटोगोनिया ओनली, ओके। बट फर्क ये है कि टाइप ए सेल जो है वो बार बार माइटोटिक डिवीजन करते रहेंगे एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहेंगे, ओके। यही एक फर्क है। लेकिन टाइप बी सेल्स जो है ना वो स्पर्म्स बनाने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो एक टाइप बी सेल मैंने यहाँ पे ले लिया है, दूसरे वाले में भी सेम सिनारियो ही होगा, ओके। दैट इज नथिंग लाइक हेवी डिफरेंस ओवर देयर, as you can see on the screen, okay। So spermatogonia type B cells deployed in nature, second growth phase will be occurring now। spermatogonia के अंदर growth phase होगा, मतलब diploid cell के अंदर growth phase होगा। growth phase होने का मतलब क्या है, size का increase होना। as you can see over here diagram बड़ा कर दिया है मैंने, that means what, the size has been increased now। second मीन्स यहाँ पे डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाउ एनलार्ज सेल्स, ओके। ये क्या है, एनलार्ज सेल्स है, तो यही है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो अ मियोसिस वन, जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। ये बना के देंगे दो हैप्लॉइड सेल्स, ओके। इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। नाउ दिस हैप्लॉइड सेल्स विल अंडरगो मियोसिस टू टू प्रोड्यूस द मोर हैप्लॉइड सेल्स, है ना। तो टोटल आपको मिलेंगे चार हैप्लॉइड सेल्स, ओके, मियोसिस टू के बाद, विच इज एन इक्वेशनल डिवीजन। And these four haploid cells, these are called as the spermatids, means your first phase has been completed, okay। मतलब first process जो है वो complete हो गया, spermatids बना लिया है हम लोगों ने germinal epithelial cells से, okay, जो कि haploid in nature है। अभी maturation phase, okay। क्या समझना है इसे, मियोसिस वन एंड द मियोसिस टू जो है इनको क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। दैट इज फ्रॉम द स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू द स्पर्मेटिड्स। ये पूरा का पूरा फेज जो अभी हम लोगों ने देखा उसको मैच्योरेशन फेज कहते हैं। आ रही है बात समझ में, ओके। इजी है। अभी क्या करना है, स्पर्मेटिड्स को स्पर्मियोजेनेसिस करना पड़ेगा, ये रहा सेकंड फेज जहाँ पे वो डेवलप्ड हो जाएंगे स्पर्म्स में, ओके। वेरी सिंपल। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये देखो, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस वन ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम, okay, one of the spermatogonium produces the four sperm cells, okay। The sperms have half the number of the chromosomes। Now after fertilization the diploid chromosome number is restored in the zygote, ये भी आपको पता है, okay। It maintains the chromosome number of the species, ये बहुत जरूरी है, okay। Individual see during the meiosis one crossing over takes place, ये आप लोगों ने पढ़ा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ओके। विच ब्रिंग्स अबाउट द वेरिएशंस, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट नहीं होते, बात समझ में आ रही है ना। देयर विल बी लिटिल एंड लिटिल, और थोड़ा सा ज्यादा यू कैन से वेरिएशंस तो आना ही है, ओके। देन स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, thus it supports the evidence of the basis of relationship of the organisms, okay। इतनी बातें अभी समझने के बाद बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस के पास, दैट इज अ स्पर्मेटोजोआ, ओके। तो स्पर्मेटोजोआ नथिंग बट द स्पर्म्स, अभी इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है स्पर्म्स, यहाँ पे देखो, द स्पर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल सेल्स। स्पर्म्स रिमेन्स अलाइव एंड रिटेन देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम, दैट इज एन एग। कितने घंटे में, 24 से 48 आवर्स तक अलाइव रह सकते हैं स्पर्म्स, ठीक है, कैपेसिटी है उनके पास till 2 days you can say, okay। The sperms has four parts, normally head, neck, middle piece and the tail। Now see over here, head part के बारे में बात करें तो हेड का जो पोर्शन होता है वो एंटीरियर साइड में होता है, वो छोटा होता है, उसको कहेंगे एक्रोसोमल रीजन। और जो ठीक उसके नीचे होगा पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट, वो लार्ज न्यूक्लियर रीजन होगा, ओके। सो हेड रीजन में आप लोगों को दो पार्ट देखने मिलते हैं, एक्रोसोमल रीजन एंड द न्यूक्लियर रीजन, ओके। अब हेड के बाद जो एक्रोसोमल रीजन के बारे में जो मैंने बात की अभी, वो भी ध्यान रखना कि वो होता क्या है। इट फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी बॉडी। क्वेश्चन, ये क्या है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड्स एंड इट कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज अ हाइला यूरिनोडेस एंजाइम, ओके। जो कि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ स्पर्म लाइसिंग एंजाइम, जो कि पेना ये बोलते हैं ना आप लोग, जोना पेलोसिडा मेम्ब्रेन जो होती है उसको डिसॉल्व करने का काम करवा के देते हैं, ओके। Sperm lysing used to contact and penetrate the egg ovum at the time of fertilization, okay।
अब ये यहाँ पे लिखा है कांटेक्ट, तो ये कांटेक्ट तो होना जरूरी है। ओके, और ये कांटेक्ट मतलब एग सेल को ट्रिगर मिलेगा ताकि वो मियोसिस 2 का प्रोसीजर कंप्लीट कर पाए। कैसे, वो दिखाऊंगा आगे जाके। ओके, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। बढ़ते हैं आगे नेक के तरफ। इट इज वेरी शॉर्ट, प्रेजेंट बिटवीन यू कैन से हेड एंड द मिडिल पीस। इट कंटेन्स द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट कंटेन्स द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस which plays a role in the first you can say see first cleavage of the zygote, and the distal centriole will give rise to a axial filament of the sperm। ये axial filament जो होती है वो sperm के टेल के अंदर चली जाएगी। ओके, और जो पहला वाला proximal centriole जो है वो क्लीवेज प्रोसेस चालू करेगा जाइगोट में। ओके, उसके लिए मदद करेगा। बढ़ते हैं आगे विद रेस्पेक्ट टू द मिडिल पीस। तो देखो, द मिडिल पीस ऑफ द ह्यूमन स्पर्म्स कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कॉइल्ड होता है। ओके, राउंड द एक्शियल फिलामेंट कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ओके, इसको निम्बेरकन भी कहते हैं। निम्बेरकन हम लोगों ने बात की थी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, एक बार याद करने की कोशिश करो। ओके, कॉइल टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट ओवर देयर जिसको हम लोग कहते हैं निम्बेरकन। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सी, they provide energy for the movement of the sperm, so it is also called as the powerhouse of the sperms। सिंपल सी बात है। ओके, एट द एंड ऑफ द मिडिल पीस यू कैन से देयर इज अ रिंग सेंट्रियोल। तो एक और रिंग सेंट्रियोल आपको देखने मिलेगा जिसको हम लोग एन्यूलस कहते हैं, विथ विथ यू कैन से अननोन फंक्शन। तो अभी तक इसका जो रिंग सेंट्रियोल है इसका क्या फंक्शन है अभी तक इसके बारे में पता नहीं किया गया है। ओके, सो पोस्टीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस जो है नेक, सी पोस्टीरियर हाफ ऑफ न्यूक्लियस, neck and the middle piece of the sperms are covered by a sheath called as a manchete। okay, what is this manchete? is nothing but the covering, मतलब पूरा न्यूक्लियर रीजन से चालू होके वो सीधा नीचे आना है मिडिल पार्ट तक। ओके, मतलब हेड नेक एंड द मिडिल पीस विल बी कवर्ड विद द मेम्ब्रेन जिसको मैनचिट्टे भी कहा जाता है। ओके, now let's talk about the tail part। the tail is several times longer than the head। okay, it is the most part common main piece you can say। The axial filament is surrounded by the thin layer of the cytoplasm। yes, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत नेग्लेजिबल या तो बहुत थिन लेयर में प्रेजेंट होगा। ओके, द पार्ट बिहाइंड द मेन पीस इज कॉल्ड एज अ एंड पीस which consists of naked filament alone, and the sperm swims by its tail in a fluid medium। okay, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा। so this is how the actually figure look like। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ये रहा हेड पोर्शन जिसको एक्रोसोमल रीजन कहा जाता है जिसके अंदर स्पर्म लाइसिंग एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज द हेड रीजन जिसके अंदर आप लोग देख रहे हो पूरा न्यूक्लियर रीजन है ये। ओके, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल्स एंड ऑल। अब बाकी आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग तो देख ही पा रहे हो वहां पे, ठीक है। अभी नाउ सी, ये रहा यहाँ से थोड़ा सा नीचे से पोस्ट एक्रोसोमल शीट। ओके, जिसको मैनचिट्टे हम लोग कहते थे, है ना। तो वो सारी बातें यहाँ पे नेक है, और नेक में है proximal centriole। ओके, नाउ ठीक, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो दिस इज अ मिडिल पीस। ओके, और इसके अंदर है कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड द एक्शियल फिलामेंट। और ये एक्शियल फिलामेंट बना कैसे, तो सेंट्रियोल जो है ना वो डिस्टल सेंट्रियोल ने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को, सॉरी, डिस्टल सेंट्रियोल ने ये बड़ा सा लॉन्ग इलोंगेटेड फाइबर लाइक सब्सटेंस बनाया जिसको हम लोग एक्शियल फिलामेंट कहते हैं। याद करने की कोशिश करो, 9+2 अरेंजमेंट वी हैड स्टडीड इन द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, जहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को लेकर डिस्क्राइब किया था, एज वेल एज वी हैड आल्सो डिस्क्राइब द सेंट्रियोल स्ट्रक्चर। ओके, so that is what over here। एंड टेल पार्ट आप लोग देख पा रहे हो जिसके ऊपर फाइब्रस शीट भी बनी हुई है, दैट इज ओनली द मैनचिट्टे पार्ट। एंड द फाइनली जब ये लास्ट एंड वगैरह देखोगे तो इट इज अ नेकेड पार्ट ओनली। ओके, जस्ट देयर इज नो यू कैन से साइटोप्लाज्म एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी सीन ओवर हियर। साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है स्पर्म्स में, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, याद रखना। ओके, now we are entering into the topic called as a oogenesis। spermatogenesis has been completed। okay, now see oogenesis, it is a discontinuous process
The process of formation of the mature female gamete called as a ovum is called as a oogenesis process. Okay, it occurs in the ovaries of the female gonads. It consists of three phases like multiplication phase, growth phase, and the maturation phase. Same what we studied in the spermatogenesis process. Multiplication phase यहाँ पे mitotic division, ग्रोथ फेज वाइटेलोजेनेसिस, मैच्योरेशन फेज मियोटिक डिवीजन. ओके, तो ये तीनों के स्पेशलिटी दी हुई है, आपको कंपलसरी याद रखना है. मल्टीप्लिकेशन फेज यानी माइटोटिक, ग्रोथ फेज यानी वाइटेलोजेनेसिस, ओके, एंड मैच्योरेशन यानी मियोटिक सेल डिवीजन विल बी टेकिंग प्लेस. तो चलो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पीरियड से, जैसे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, जहाँ पे फीमेल फिटस जो होती है उसके पास कम से कम 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स आ जाते हैं ओवरी के अंदर. ये आते कहाँ से है, तो मदर से वो लोग को मिल जाते हैं. ओके, मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग दिस 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स टू द बेबी. ओके, फीमेल फिटस. नाउ जैसे ही फर्स्ट महीने के बाद लाइक 2 महीने खत्म हो जाते हैं, ड्यूरिंग द सेकंड मंथ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, नाउ दिस 1700 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 6 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स. Okay, now during the fifth month you can say of the gestation period, that is a 7 million primary follicles will be generated. How many? तो देखो 5 महीने के टाइम पीरियड में 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, लेकिन ये सब क्या हो जाएंगे, एट्रेशिया हो जाएंगे. एट्रेशिया का मतलब क्या है, दे विल बी श्रिंकिंग. ओके, तो उनको श्रिंकिंग फॉलिकल्स भी कहा जाता है. लेकिन देखो जब बर्थ होने का टाइम आता है, ड्यूरिंग द बर्थ यू कैन से मतलब 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड, इट विल बी कन्वर्टेड ओनली इन द 12 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स बचे हैं. तो 7 मिलियन थे, बच्चे खाली 2 मिलियन यहाँ पे, वो कैसे पॉसिबल है. 2 मिलियन जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो उनमें से जो ऑलरेडी आधे की, देखो कुछ ना कुछ तो लाइफ स्पैन होगा ना कुछ ना कुछ सेल्स का, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं. समझ में आ रही है, तो ऐसे करते हुए खाली खाली 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाएंगे. ओके, टिल प्यूबर्टी यू कैन से इट विल रिमेन ओनली 60,000. मतलब जब डिलीवरी हो चुकी है बेबी की, ओके, दैट फीमेल विल बी स्टार्ट डेवलपिंग टिल द प्यूबर्टी पीरियड. ओके, मतलब 10 से 12 साल की उम्र तक वो जब बड़ी हो जाती है, तभी उनके ओवरीज में खाली 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही देखने मिलेंगे एक ओवरी में. ओके, सो ऐसे करके दोनों ओवरीज को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 1,20,000 के हिसाब से ओवरी मतलब फॉलिकल जो है प्रेजेंट रहेंगे ओवरीज के अंदर. ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, till birth period means till you can say delivery of the child till it becomes the puberty. Okay, it will be converted into 2 billion के हो जाएंगे 60,000. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब उसके पास प्यूबर्टी के समय में खाली 1,20,000 के हिसाब से आप लोग बोल सकते हो प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट रहेंगे. अब इनमें से क्या हो जाएगा, एवरी 500 फॉलिकल्स ओनली वन विल बी डेवलप्ड इनटू एन एग. तो हमेशा जो एफएसएच हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो 500 मिनिमम 500 फॉलिकल्स को ट्रिगर करता है, लेकिन फाइनली बचता कितना है, तो एक ही है जो फिर फाइनली एग में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, बाकी सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. अभी देखो कैसे होती है ये प्रोसीजर. मल्टीप्लिकेशन फेज आ गया है, प्राइमरी फॉलिकल ले लेते हैं, ये डिप्लॉयड सेल्स होता है, माइटोटिक डिवीजन करेंगे, 2 सेल्स मिलेंगे. ओके, जिनको ओगोनिया कहा जाता है. यस, ओगोनिया इज ए डिप्लॉयड इन नेचर, ये भी आपको ध्यान में रखना ही है बातें. ओके, नाउ सी, अभी ग्रोथ फेज होगा जिसको कहते हैं वाइटलोजेनेसिस प्रोसेस. ग्रोथ फेज यानी क्या, उगोनिया जो कि है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा. ओके, प्राइमरी oocyte विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर. ओके, जो कि लार्ज साइज में हो गया है कन्वर्ट. उगोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उगोनिया एंड द प्राइमरी oocyte? सो इट इज अ लार्जर इन साइज. ओके, मैच्योरेशन फेज के बारे में बात करें तो ये प्राइमरी oocyte जो है इट विल अंडरगो अ वन मियोसिस डिवीजन. ओके, मियोसिस एक हो जाएगा, मतलब मियोसिस फर्स्ट विल बी गेटिंग कंप्लीटेड ओवर हियर. लेकिन यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस इक्वली हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस विल नॉट बी इक्वली ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पे जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका मॉडिफिकेशन इस तरीके से कि मैक्सिमम साइटोकाइनेसिस विल बी गिवन, मीन साइटोकाइनेसिस व्हेन हैपनिंग, more number of cytoplasm will given or distributed to the one of the cell, and other will be taking very less or negligible amount of the cytoplasm. जो less और negligible cytoplasm लेते हैं, they are haploid in nature but they are called as a first polar body. इनका कोई भी रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन के समय में, मतलब फर्टिलाइजेशन के समय में. ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा सेल है ना, ये क्या होगा, अभी इसको कहलेंगे हम लोग सेकेंडरी oocyte. ओके, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है, सेकेंडरी oocyte है, लार्ज सेल्स है. ओके, मोर नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म विल बी, मतलब मोर अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म विल बी देयर. और यही स्टेज पे एक्चुअली क्या हो जाता है, एग जो है वो रिलीज होता है. दैट इज द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हेन द एग इज रिलीज, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ
you can say secondary oocyte along with the one polar body, along with the one polar body. Okay, तो सी नोट क्या बोल रहा है, एग इज रिलीज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, हियर oogenesis इज अरेस्टेड इन अ डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेस वन ऑफ द मियोसिस वन। ये कंपलसरी ध्यान रखना है। मियोसिस टू आगे ट्रिगर ही नहीं हुआ, वो ट्रिगर कब होगा, जब स्पर्म आएगा तभी। ओके, जब स्पर्म्स आएगा सेकेंडरी oocyte को टच करेगा, दैट टाइम ओनली इट विल बी ट्रिगर्ड। ओके, तो अभी वो कैसे होगा वो सारी बातें अभी हम लोग करेंगे। तो देखो, अभी ऐसे मान लेते हैं कि ऑलरेडी स्पर्म ने क्या किया है, आया है और उसने ट्रिगर किया है, और क्या है, मियोसिस टू चालू हो चुका है। हम लोग तो ऐसे ही मानेंगे क्योंकि oogenesis अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा ना। तो सेकेंडरी oocyte को स्पर्म ने ट्रिगर किया मियोसिस टू करने के लिए। जब मियोसिस टू होता है, दैट इज अगेन सेम सिनेरियो विल बी सीन, वन स्मॉल बॉडी विल बी सीन एंड वन लार्जर सेल विल बी सीन। ओके, जो लार्जर सेल होता है उसको ओटिड या फिर ओवम या तो फिर एग बोलेंगे, और एक सेकंड बॉडी बॉडी जो है पोलर बॉडी वो फॉर्म्ड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेकंड पोलर बॉडी तो हमको ये सेकेंडरी oocyte से मिली। मान लो जो पहली वाली पोलर बॉडी है अगर वो सरवाइव कर गई, तो वो भी अगर मान लो अंडरगोइंग मियोसिस टू प्रोसेस में, तो उसके भी दो डॉटर सेल्स बनेंगे ना, तो वो दो पोलर बॉडी एंड दिस वन पोलर बॉडी विल बिकम थ्री पोलर बॉडी। अंडरस्टूड? इफ दिस फेलो विल सर्वाइव, अदरवाइज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी विल बी सीन ओवर हियर। ओके, now see, meiosis 2 is triggered by the entry of the sperms. Now let's देखो, वाइटेलोजेनेसिस प्रोसेस आप लोगों ने देखा जो कि साइज इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्या है, देखो 200 टाइम्स ह्यूमन फीमेल्स में होता है, 200 टाइम्स हेंस में होता है, मतलब 2000 टाइम्स फ्रॉग्स में होता है, और 90,000 के हिसाब से ड्रोसोफिला में होता है। इतना क्यों वाइटेलोजेनेसिस में होता है, मतलब देखो, जब ये एग्स होते हैं ना, हेंस के एग्स को बात करो या फिर फ्रॉग्स के या फिर ड्रोसोफिला के, इनके जो एग है ये बॉडी के बाहर होते हैं। किधर होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, जब वो एग होते हैं तब क्या होता है कि उनको मदर से तो नरिशमेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा जो भी नरिशमेंट है वो उनका योक में होना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके वो एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए वो इतना वाइटोलोजेनेसिस में ग्रोथ देखने मिलता है। ओके, बात समझ में आई? लेकिन ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, प्लासेंटा वगैरह स्टिल अटैच टू द बेबी, एंड वहां से ही मदर से फीटस को नरिशमेंट सप्लाई किया जाता है। ओके, दैट इज व्हाट आई मीन ओवर हियर। नेक्स्ट, सिग्निफिकेशन ऑफ द oogenesis के बारे में समझते हैं। वन oogoनियम प्रोड्यूसेस वन ओवम and three polar bodies. I hope you understood this three polar body very clearly. Okay, so now see, polar body have small amount of the cytoplasm. It helps to retain the sufficient amount of the cytoplasm in the ovum, which is essential for the development of the early embryo. Okay, now see, the formation of the polar body maintains half number of the chromosome in the ovum itself. Okay, next, during the meiosis, first crossing over takes place, which brings about the, you can say, variations, and oogenesis occurs in the various organisms. दूसरी बात क्या है, therefore it supports the evidence of the basic relationship among the organisms. Okay, तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर कट आपको आइडिया मिल जाती है। So what we studied over here, we have studied the spermatogenesis and oogenesis process in detail. In the next lecture we are going to talk about more with respect to the egg, that is the different types of the egg. Okay, और उनके फर्दर जो मेम्ब्रेन्स है एग्स के सराउंडिंग में, वो सारी मेम्ब्रेन्स को लेके भी बात होगी, लाइक कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड और क्यूमुलस ओफोरिकस, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, इन सबको लेके भी बात होगी। और भी कई इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपके साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना यहाँ पे लेक्चर को रोकेंगे। जस्ट कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।